Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson. So now all of you look at in your textbook. First we will see what you had learned in this lesson. So what you had learned in this lesson, first we had learned the recall exercise. Then after we had learned the equivalent fraction. Then after we had learned the finding equivalent fraction by using the multiplication and division method. We are solving this problem. Then after we had learned the checking for equivalence. For how to checking equivalence by using the crossing method, we are checking the equivalent fraction. Then fraction in lowest term. The fraction is lowest term is only common factors of the numerator and the denominator is the 1. Denominator and numerator only 1 is the common factor is called the lowest term. Then after we had learned the simplification of fractions. So by using the division method, we are solving the simplification of fraction. Then after we had learned the type of fraction. Which type of fraction? Like fraction and unlike fraction. Like fraction means when the denominator is same, so it's called like fraction, and when the denominator is different, is called unlike fraction. Then proper and improper fraction. Proper and improper fraction. Improper fraction when the denominator is small than numerator is called improper fraction. Then proper fraction when the denominator is the greater than numerator is called the improper fraction. Then mixed fraction when the two fraction is combined with each other is called the mixed fraction. Then unit fraction. What is the unit fraction? When the numerator are the 1 is called the unit fraction. Then after we had learned the conversions of improper fraction and mixed fraction. How to convert? By using the 5 divided by 3. How to convert in the mixed fraction? Now look at here, 3 divided by 5. When we will convert the improper fraction when we are convert improper fraction into mixed fraction, when the denominator is small than numerator, that cases we will convert the mixed fraction. Suppose denominator is greater than the numerator, that cases we are not convert into the mixed fraction. When the denominator is small than numerator, that cases we will convert the mixed fraction, means improper fraction is converted into the mixed fraction. So when we are divided by 3 divided by 5, so we will get 1 is the quotient and 2 is the remainder. So we will get answer 1, 2 divided by 3. And how to convert mixed fraction into the improper fraction? 5 divided by 3. So 1 divided by 3, this is the mixed fraction. How to convert? 2 into 3. 2 into 3, 6 plus 1 is 7 divided by 3. So how to convert? Whole number is multiply denominator. Whole number is the 2 and denominator number is the 3. 2 into 3, 6, and adding the numerator. Numerator number is the 1. So 2 into 3, 6. 6 plus 1, 7. So we will get the improper fraction. Then after we had learned the comparisons of fraction. So when the denominator and numerator different from each other, so that cases we are using the LCM method. Then after we had learned the fraction as the division. Then after we had learned the addition of fraction with the same denominator. When the denominator is same, so we will write denominator one time and adding the numerator numbers. Then after we had learned the subtraction of the fraction with the same denominator. When the denominator is same, so we will write denominator one time and subtracted numerator numbers. When the denominators and numerator are the different, that cases we are using the LCM method. We will solve the problem. So this is we had learned our last class, subtraction of the fraction with the different denominator. That same when the denominator is different from each other, so we will using the LCM method.
Then after we had learned in last class story sums. Then after we had learned last class exercise 8.13 example number 5. We are last class done. Now look at example number 6. 5 we had done our last class. Now example number 6. Govind brought 1/4 meters of cloth from one shop. Govind brought 1/4 meters of cloth from one shop and 2 and 1/4 meters of cloth from the another shops. So what length of the cloth buy in all? What गोविंद ने क्या किया है, क्लॉथ खरीदा है. फर्स्ट वाले शॉप से उसने कितना क्लॉथ खरीदा है, 1/4 मीटर. एंड जो दूसरा शॉप है वहां से कितना खरीदा है, 2 1/4 मीटर उसने सेकंड वाले शॉप से खरीदा है. तो उसने टोटल कितने लेंथ ऑफ क्लॉथ खरीदा है वो पूछा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. सो नाउ लुक एट इन नोटबुक. गोविंद ब्रॉट क्लॉथ फ्रॉम वन शॉप. कितना लाया, 1/4. नाउ दिस इज मिक्स फ्रैक्शन है. इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर में. 1 into 4 4 4 plus 1 5 5 डिवाइडेड बाय 4. फर्स्ट वाले शॉप से उसने कितना खरीदा है, 5 डिवाइडेड बाय 4 मीटर. देन ही ब्रॉट क्लॉथ्स फ्रॉम द अनदर शॉप. दूसरे शॉप से कितना खरीदा है, 2 1/4. सो 2 into 4 8 8 plus 1 9 9 डिवाइडेड बाय 4 मीटर. ठीक है, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे. यहाँ पे 5 प्लस 9 करेंगे. ठीक है, 5 प्लस 9 कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाय 4. नाउ डिनोमिनेटर इज स्मॉल देन न्यूमरेटर. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो हाउ टू कन्वर्ट, 4 डिवाइडेड बाय 14. So 14 is present in the 4 tables. Now what is the nearest value, 12. 12 is the place of 3. So we will get 3 is the quotient and 2 is the remainder. So quotient क्या है, 3 है और रिमाइंडर कितना है, 2 है एंड 4 मीटर. सो उसने कितना क्लॉथ खरीदा है, 3 2/4 मीटर क्लॉथ उसने खरीदा है. 3 2/4 मीटर उसने क्या किया है, क्लॉथ खरीदा है. सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ही बाय 3 2/4 मीटर. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7. Martha and Rahul run in a 100-meter race. उन्होंने रेस कितने मीटर रेस लगाई है, 100 मीटर रेस में क्या किया है, रेस ऑन द 100 मीटर. मर्था कंप्लीट द रेस इन 17 1/5 सेकंड. उसने मर्था ने जो रेस है वो कंप्लीट की है 17 1/5 सेकंड में. एंड राहुल इन 15 3/4 सेकंड. और राहुल ने कितने सेकंड में कंप्लीट किए है, 15 3/4 सेकंड में कंप्लीट किए. हु वॉन, तो दोनों में से कौन वो रेस जीत गए. एंड हाउ मच लॉन्गर दिस मर्था टेक, और मर्था ने कितनी ज्यादा टेक की है. ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा. तभी हमें पता चलेगा कि किसने कितना ज्यादा लिया है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम लाएंगे. सो फर्स्ट लुक एट हियर, 17 1/5 सेकंड है. ठीक है, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, इन प्रॉपर में. 17 5 85 85 प्लस 1 86 डिवाइडेड बाय 5. ओके, देन 15 4 60 60 प्लस 3
63 डिवाइडेड बाय 4। अभी दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम लाना है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए दोनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 20 नंबर कॉमन आता है। मतलब हमें 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 4th वाले प्लेस पे 20 आता है और 4 के टेबल में 5 वाले प्लेस पे 20 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि किसने ज्यादा क्या किए हैं, कौन हु वॉन, मतलब कौन रेस जीत गई है वो निकालना है। तो क्या है, 86 डिवाइडेड बाय 5 है और 63 डिवाइडेड बाय 4 है। अभी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 कितना होगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 है, ठीक है। तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर 20 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 86 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है हमें। नाउ लुक एट हियर, 86 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। ओके, 86 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 86 मल्टीप्लाई बाय 4। So 4 6 are 24. So 24 are 4 and 2 is the carry. And 4 8 are 32. 32 plus 2 34. तो कितना हो जाएगा, 344। 344 divided by 20. 5 into 4 20. Okay. Now next कौन है, राहुल है। राहुल ने कितना रेस किया है, 36 डिवाइडेड बाय 4 है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है। तो 63 मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ एंड 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सो 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। 63 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्या करेंगे, 63 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। 5 3 जा 50, 1 इज द कैरी एंड 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31। सो कितना मिल गया है, 315। कितना मिल गया है, 315 मिल गया। ओके, सो हमें निकालना है कि रेस कौन वॉन हो गए, वॉन रेस कौन वॉन हो गई, जिनको टाइम कम लग गया है वो क्या हो गए, वॉन हो गए। तो किसको कम टाइम लगा है, ये किसका है, राहुल का। किसको मैच वॉन हो गया, राहुल, क्योंकि राहुल को कितना टाइम लगा है, 315/20 उसको टाइम लगा है राहुल को। तो कौन वॉन हो गया है, राहुल, ठीक है। तो ये हो गया है रेस कौन वॉन हो गई। फिर उसके बाद हमें निकालना है कि हाउ मच लॉन्गर डिड मार्थन टेक। सो मार्थन ने कितने ज्यादा क्या किया है, रेस को टाइम लगा है उसको, किससे, राहुल से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्थन के जो क्या है सेकंड है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा राहुल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्था टेक लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो मार्था टेक डिस्टेंस इक्वल टू क्या करेंगे हम, 344 डिवाइडेड बाय 20 में से माइनस करेंगे 315 डिवाइडेड बाय 20। राहुल से उसको कितना टाइम ज्यादा लगा है रेस में, वो निकालना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो 344 माइनस 315 डिवाइडेड बाय 20। अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में सेम नंबर आएगा 20। 344 में से माइनस करेंगे 315 को। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 माइनस 5 कितना आएगा, 9। यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 0 0। तो कितना आ गया, 29 डिवाइडेड बाय 20।
नाउ ये दोनों भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी ये क्या है, डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर्स में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 90, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 29। सो 29, 21 सा 20 एंड 9। सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है, 1 मिल गया है, और रिमाइंडर कितना मिल गया है, 9 मिल गया है। तो उसको कितना सेकंड लगा है, 9 बाय 20 सेकंड, उसको क्या लगा है, ज्यादा टाइम लगा है, 9 बाय 20 सेकंड उसको टाइम ज्यादा लगा है, किसको, मार्था को। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8। अ वेसल हैड 3 1/2 liters of milk. A vessel had 3 1/2 means 3.5 liters of milk. वेसल में कितना मिल्क होता है, कितना मिल्क है, 3.5 लीटर मिल्क से। अ कैट ड्रंक, कैट ने क्या किया है, ड्रिंक किया है मिल्क को 3/4 लीटर, मतलब 3/4 उसने लीटर क्या किया है, मिल्क ड्रिंक किया। सो हाउ मच मिल्क लेफ्ट इन द वेसल। तो हमें निकालना है कि अभी जो वेसल है उसमें कितना दूध बच गया है, मतलब बर्तन में कितना दूध बच गया है। कैट ने कितना ड्रिंक किया है, 3/4 मिल्क उसमें से ड्रिंक किया है। सो नाउ लुक एट हियर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। अ वेसल हैड अ मिल्क, वेसल में कितना मिल्क है, 3.5 लीटर है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। 3 × 2 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। अ कैट ड्रिंक मिल्क, कैट ने कितना ड्रिंक पी लिया है, 3/4 लीटर, 3/4 लीटर मिल्क उसने क्या किया है, ड्रिंक किया है। अब हमें निकालना है कि कितना ड्रिंक उसने क्या किया है, कितना ड्रिंक उसने पिया है, सॉरी कितना मिल्क हमारे वेसल्स में बचा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा। सो 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। 2 और 4 के टेबल में कॉमन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 को 2 के साथ। नाउ लुक एट हियर, लेफ्ट मिल्क इन द वेसल, कितना मिल्क बच गया, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7 डिवाइडेड बाय 2 में से हमें, मतलब जितना दूध था उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना। 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी इसका डिनोमिनेटर हमें सेम लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2 है एंड 3 डिवाइडेड बाय 4 है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 4, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो इसको ही हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 × 2 एंड 2 × 2। 7 × 2 14 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अभी इसका आंसर कितना आ गया, 14 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। 14 में से 3 माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 14 में से 3 गया, कितना बच गया, 11 डिवाइडेड बाय 4। अभी डिनोमिनेटर हमारा क्या है, छोटा है न्यूमरेटर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम मेथड, सॉरी यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे। सो 4 2 = 8, 11 माइनस 3 कितना होगा, सॉरी 11 माइनस 8 कितना होगा, 3। सो हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया है, 2 मिल गया है और रिमाइंडर 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 3 डिवाइडेड बाय 4। तो वेसल में कितना मिल्क बच गया है, 234 लीटर मिल्क हमारे वेसल में बच गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, देखो। What should be subtracted from? What should be subtracted from
5 4 डिवाइडेड बाय 5 4 डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट 1 3 डिवाइडेड बाय 10। क्या बोल रहे हैं कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें ये आंसर मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ लुक एट हियर। 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 है। इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो उसके बाद हमें आंसर मिलेगा 1 3 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे आंसर मिलेगा, ऐसे यहाँ पे बोला है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लेके आएंगे और x को यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में, एडिशन फॉर्म में है। तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लिख दिया है और यहाँ पे आएगा 1 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और अभी ये जो x है उसके सामने माइनस का साइन है तो यहाँ आएगा तो वो एडिशन में आ गया। तो ये कैसे आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। ये जो 1 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 है वो क्या है, प्लस के फॉर्म में है। तो इधर आने के बाद जब हम इक्वल के साइन में से नंबर दूसरे जगह पे हम ट्रांसफर करते हो तो उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 3 डिवाइडेड बाय 10 ये एडिशन के फॉर्म में है, ऐड है। यहाँ पे कुछ सब माइनस का साइन दिख रहा है क्या, नहीं, ये मतलब ये क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव है। तो वो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया है, 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। और ये x माइनस में है तो यहाँ गया, तो वो कौन से फॉर्म में हो गया है, एडिशन के फॉर्म में। अभी हम क्या करेंगे, x को यहाँ लिख देंगे, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 10। हमने सिर्फ क्या किया है, x को इधर लाया है और ये नंबर इधर किया है, क्या किया है, सिर्फ चेंज किया है। तो यहाँ पे अभी कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम x इक्वल टू 4 इंटू 5 20 प्लस 4 24 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे 1 इंटू 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो हमें दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के टेबल में 1 वाले प्लेस पे 10 आता है, 5 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे 10 आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इस 24 डिवाइडेड बाय 5 है उसको ही हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 5 है उसको क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन है, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 48 होता है और यहाँ पे कितना आ गया, 10 है, माइनस 13 डिवाइडेड बाय 10 है। x इक्वल टू, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है, 48 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 10। x इक्वल टू 48 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 48 माइनस 13। 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 1 गया है तो कितना 3, तो कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाय 10। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 35, सो 10 3 सा 35। क्वेश्चन कितना मिल गया है, 3 और रिमाइंडर कितना मिल गया, 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 5
डिवाइडेड बाय 10। अभी देखो 3 5 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, लेकिन हम देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू 3 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब हमारा x वाला नंबर क्या हो गया है, 3 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। मतलब हम 4 डिवाइडेड बाय 5 में से हम 3 1 डिवाइडेड बाय 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा, 1 3 डिवाइडेड बाय 10, ये नंबर हमें मिल जाएगा। मतलब हमारा नंबर कितना आ गया है, 3 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा नंबर आ गया है। ये नंबर हम 4 डिवाइडेड बाय 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 3 डिवाइडेड बाय 10, हमें ये आंसर मिलेगा। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, लुक एट हियर। व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक 5 डिवाइडेड बाय 12। व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा। इसमें क्या ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, लुक एट हियर। 2 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस x, क्या ऐड करेंगे हम, x प्लस, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू 2 डिवाइडेड बाय 4, सो इट मेक 5 डिवाइडेड बाय 12। फर्स्ट एग्जाम्पल में सब्ट्रैक्शन था तो हमने सब्ट्रैक्शन का लिया था, और यहाँ पे एडिशन का है तो हमने क्या किया है, एडिशन का साइन दिया है। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है, x है। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी एक ये वाला x है, यहीं पे रखेंगे, क्या करेंगे, x को यहीं पे रखेंगे। ये 2 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 12 में से हम माइनस करेंगे 2 4 डिवाइडेड बाय 9 को, क्योंकि क्या बोला है कि ये दो नंबर है, ऐड करने के बाद ये नंबर मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। जैसे हम अगर नंबर है 1 और x है इक्वल टू 2 है, क्या है, 1 प्लस x है इक्वल टू 2 है, तो हमें क्या करना है, ये x का नंबर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे, मतलब x इक्वल टू 2 में से 1 करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें आंसर 2 मिलेगा। तो हम इसमें वही कर रहे, हमें ये नंबर दिया है, मतलब ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दिया है इसको हमें ये नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। तो सेम यही यहाँ पे वही है, 2 डिवाइडेड बाय 4 में हमने क्या मिला है, हमें नंबर नहीं पता है इसलिए हमें x लेना है, और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना मिल रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 12 आंसर मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर में से ये नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, इसमें से माइनस था, तो हमने ये दोनों नंबर माइनस करने के बाद ये हमें ये नंबर मिल रहा है। तो हमें क्या करना था, ये नंबर इसमें से माइनस करना था, तभी हमें x की नंबर मिलेगी। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा था, ये जो नंबर था उसमें से हमने इक्वल वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, और इसमें हमें ये नंबर जो है x के पहले वो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 इंटू 12 60, 60 प्लस 5 65, 5 इंटू 12
60, 60 plus 5, 65 divided by 12 minus 2 into 9, 18, 18 plus 4, 22 divided by 9। अभी देखो 12 है और 9 है, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है। एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 9। अभी दोनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है? सो कौन सा नंबर आएगा? 36। 12 3 जा 36 होता है और 9 4 जा 36 होता है। दोनों के टेबल में क्या कॉमन आता है? 36 कॉमन आता है। 12 3 जा 36 आता है और 9 4 जा 36, तो दोनों का एलसीएम क्या है? 36 है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 65 डिवाइडेड बाय 12 है इक्वल टू हम क्या करेंगे? 65 मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 3 जा 36, तो 65 को 3 के साथ और 12 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? यहाँ पे 36 आएगा। 65 मल्टीप्लाई बाय 3 है। 5 3 जा 15, 1 इज द कैरी, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, कितना आ गया? 195। 195 हो गया। अभी हम क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 22 डिवाइडेड बाय 9 है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 4। 22 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 88 डिवाइडेड बाय 36 है। अभी x इक्वल टू क्या करेंगे हम? 195 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 36। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है। कितना आ गया है? 36 आ गया है। अभी 195 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 को, तो कितना बचेगा? 195 सब्ट्रैक्टेड बाय 88। 15 माइनस 8 कितना होगा? 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 8 माइनस 8 0 और यहाँ पे 1, कितना आ गया है? 107। 107 डिवाइडेड बाय 36, कितना आ गया है? 107 डिवाइडेड बाय 36। अभी देखो डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 107, तो हम पहले यहाँ पे 36 1 जा 36, 36 2 जा क्या होगा? 72 होता है एंड 36 3 जा 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है। 36 3 जा 108, 108 ग्रेटर है तो हम क्या लेंगे? 72, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 72 आएगा। 7 माइनस 2 5 एंड यहाँ पे 10 माइनस 7 3, तो कितना आ गया है? 35 और यहाँ पे 2 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 2 और रिमाइंडर 35। 235 डिवाइडेड बाय 36, मतलब 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम x लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी मिल गई है? 235 डिवाइडेड बाय 6, तो हमें 2 डिवाइडेड बाय 9 में अगर हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? अगर हम 235 डिवाइडेड बाय 36 ये नंबर ऐड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 12, ये हमें आंसर मिलेगा। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। सो दिस इज our exercise 8.13. So I hope all of you nicely understood
एंड अगेन मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था पेज नंबर 133 का, मैथमेटिक्स बी फॉर कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस के लिए मैंने लास्ट पीरियड आपको बताया है और आपको बिफोर एग्जाम क्या करना है, मुझे सेंड करना है. सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.